हम हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। Bundelkhand University, a legacy of excellence and innovation. Welcome to Bundelkhand University, a beacon of higher education, innovation, and cultural heritage. Situated in the historic city of Jhansi, Uttar Pradesh, Bundelkhand University has carved a niche for itself in the academic world since its inception in 1975. Join us as we explore the vibrant campus life, cutting-edge research, and the university's contribution to society. Our journey begins with the rich history and heritage of Bundelkhand University. Founded by the government of Uttar Pradesh, the university was established to cater to the educational needs of the Bundelkhand region, which has a rich historical and cultural significance. Bundelkhand University offers a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs across various disciplines, including arts, science, commerce, law, engineering, and medicine. Bundelkhand University was established with the aim of providing quality education to the youth of this region. It has always been committed to fostering a spirit of inquiry and innovation among its students. Over the years, the university has grown exponentially, expanding its academic disciplines and infrastructure. Today, it stands as a testament to the vision of its founders and the hard work of its faculty and students. Life at Bundelkhand University is not just about academics. The university offers a vibrant campus life with a wide range of extracurricular activities, sports, and cultural events.
offers a supportive environment where students can pursue their interests and develop their talents. The campus is home to numerous student clubs and organizations that provide opportunities for personal growth, leadership, and community service. With a strong emphasis on research and practical learning, the university boasts state-of-the-art laboratories, well-stocked libraries, and highly qualified faculty members who are experts in their respective fields. These research initiatives have led to groundbreaking discoveries and innovations that have had a significant impact on both the local community and the wider world. We are committed to advancing knowledge and finding solutions to real-world problems. Our research projects are aimed at improving the quality of life and contributing to sustainable development.
Our curriculum is designed to provide students with a comprehensive education that combines theoretical knowledge with practical skills. We encourage our students to engage in research and innovation, which prepares them for the challenges of the modern world. At Bundelkhand University, research and innovation are at the core of its academic mission. The university has several research centers and institutes that focus on areas such as biotechnology, environmental science. मैं डॉक्टर अनुपम व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को जब भी मैं स्वयं भी वेबसाइट पर देखता हूँ, फ्लेक्सेस में देखता हूँ, या आप भी जहाँ कहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एग्जिस्टेंस, प्रमोशन देखते होंगे, तो एक शब्द आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, जो शब्द है TEC, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। हालांकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय PM ऊषा स्कीम के अंतर्गत मेरू यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश है। नेक के A++ ग्रेड के साथ मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे विश्वविद्यालय में यह TEC शब्द सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, इसी बात को और गहराई से समझने के लिए न सिर्फ झांसी अपितु पूरे बुंदेलखंड और प्रदेश भर के विद्यार्थियों और MSMEs के लिए किस प्रकार से लाभदायी हो सकती है, उसके लिए चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर लवकुश द्विवेदी। और आप हमसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से TEC हम सभी के लिए, हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और इवन बुंदेलखंड की जन सामान्य के लिए लाभकारी है। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हम लोगों को जानकारी मिली कि टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर एक बड़ा सेंटर है, बड़ा महत्वाकांक्षी इसका विषय है, बहुत बड़ा इसका दायरा है। तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आप TEC, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, क्या है TEC? नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर अनुपम जी। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पिछले वर्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिला था। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और प्राउडली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश who is having this prestigious program। पूरे स्टेट में अकेले इस प्रोग्राम को देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमको झांसी आसपास के जितने भी सेंट्रल या स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको साथ में लेकर के एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, इसलिए कि हम जो भी नई टेक्निक्स या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप कराएं। अगर कोई ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और अभी तक उनका ट्रांसफ़र इंडस्ट्री को नहीं हो पाया है, उनका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो उनकी माइनिंग कैसे की जाए। माइनिंग करने के बाद जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, चाहे हमने वो ऑलरेडी डेवलप्ड हों या हमने उनको डेवलप की हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करें, उसके लिए इंडस्ट्री सबमिट कराएं, इंडस्ट्री मीट कराएं और फिर कॉमर्शलाइज कराएं। दैट्स वाई दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ नेम्ड एज टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। तो एक प्रकार का ये एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे झांसी के आसपास के 7 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको लेकर के हम सभी लोग ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें हैं। क्या बहुत संक्षेप में आप मुझे बताएंगे कि किस प्रकार से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इतने बड़े, इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को हासिल किया? कैसी रही आपकी यात्रा? यद्यपि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हमारा 1975 से इस्टेब्लिश्ड है और हमारे पास डाइवर्सिटी है। अगर हम प्रोग्राम्स को लेकर के देखें, 37 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके अंतर्गत 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी रही, हमारी स्ट्रेंथ रही कि जब हमसे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से हम अलग अलग सेक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें हमको इसलिए कैपेबल पाया गया या इसलिए उनको लगा कि हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लगभग हर वो फील्ड जो बुंदेलखंड या पूरे स्टेट को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी है, वो हर एक फील्ड के डिपार्टमेंट्स हैं, उसके एक्सपर्ट्स हैं, उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं और उसमें स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ थी जिसको लेकर के हमारे ऊपर भारत सरकार ने विश्वास जताया। हम भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, लाइब्रेरी में जो स्टाफ है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना है, उसको नॉलेज कैसे दी जाना है, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत नए आयाम भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिए जा रहे हैं, उसके बारे में उनको बताना है। The success of Bundelkhand University can be measured by the achievements of its alumni. Graduates of the university have gone on to excel in various fields, making significant contributions to society. Bundelkhand University is deeply committed to community engagement and social responsibility. Through various outreach programs, the university works to address the needs of the local community and contribute to its development. From health camps to educational initiatives, the university's efforts are making a positive difference in the lives of many. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एनसीसी कैडेट के बहुत सारे बच्चे आके ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लिए।
और उन्होंने पूरा सहयोग किया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि ब्लड डोनेट करने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उनको कोई परेशानी हो सकती है, चक्कर आ सकता है या कुछ उनको दिक्कतें हो सकती हैं, उनका न्यूट्रिशनल लेवल कम हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेशन करने से आपके ब्लड का वापस से जब निर्माण होता है तो उससे जितनी भी टॉक्सिन्स हैं हमारे जो प्रीवियसली ब्लड में प्रेजेंट होती हैं वो निकल जाते हैं और उससे हमारा शुद्ध जो रक्त होता है वापस से बनना शुरू होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। आप अपना खान पान सही रखेंगे तो आपको कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप खून देने के लिए उपरोक्त हैं कि नहीं, और पहले हम सारी जांचें करते हैं, उसके बाद ही हम आपको खून देने के लिए प्रेरित करते हैं। खून देना एक सर्वश्रेष्ठ दान है। आप किसी को जीवन प्रदान कर रहे हैं और ये आपको हमेशा हर 3 महीने पे या 6 महीने पे आप इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं अगर आप फिट हैं, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी को लाइफ में कम से कम एक बार तो रक्तदान करना चाहिए। थैंक यू सो मच। We believe that education is a powerful tool for social change and we strive to use it to make a meaningful impact. हम हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय।